السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ لاہور کا ایک ڈیلیوری بوائے جو کسی گھر میں سامان دینے کے لیے جاتا ہے اور بار بار جاتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی جلا دی گئی، جلا کے بعد لاہور کی کسی ایریا میں پھینک دی گئی۔ تو پوری نیوز دیکھیے ویڈیو میں۔ اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کیا، یہ 10 to 15 منٹس ہو رہا ہے اوپر میرے ساتھ۔ اس نے مجھے وہاں پہ ہاتھ لگانے کی کوشش کیا۔ اچھا، اس نے مجھے پراپرلی ہاتھ لگایا، اس نے مجھے فرنٹ پہ ہاتھ لگایا، اس نے مجھے بیک پہ ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد جب میں چیخ آپ کی بیٹی اس نے جا کے پھر آپ کے سسر کو بتایا؟ ابو کو بتایا، کیا بتایا؟ ابو کو بتایا کہ وہ ماما کے ساتھ کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ابو آئے، بیٹھا ہوا تھا مثلاً کہ آپ اس 15 منٹ میں بھی آپ نے ریزسٹ نہیں کیا نہ؟ میں ایک جنرل ایک عام بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک بندہ مین گیٹ سے اوپر آتا ہے، اوپر آ کے 15 منٹ آپ کے روم میں بیٹھا ہوا ہے، تب بھی نہیں آپ 15 شور منٹ مچاتی نہیں، کوئی ہیں؟ 10 منٹ کا ہی چلے 10 تھا۔ منٹ 5 منٹ کر رہے ہیں، 10 آپ شور نہیں مچاتی ہیں، آپ کی بیٹی دیکھتی ہے اس کے بعد جا کے بتاتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ نہیں سر، اچھا، جب کیا وہ ہوا؟ میری بیٹی نیچے گئی نا تو اس نے ناک کر دیا، اوپر کا بھی نیچے کا بھی۔ اس کے بعد نیچے سے ابو آئے، ابو آ کے اوپر آئے نا، دروازہ زور زور کے جب کھڑکایا نا تو یہ بہت زیادہ ڈر گیا، بہت ہی زیادہ ڈر گیا، اور وہ بھاگ گیا ادھر کو ٹیرس والی سائڈ پہ، اور اس نے اوپر سے مجھے چھلانگ لگا لی۔ یہ سین میں نے نہیں دیکھا، نہ میں جانتی ہوں نہ میں نے یہ بات دیکھی ہے، کیونکہ یہ جیسے کچن کی طرف کو بھاگا نا تو میں دروازہ کھولنے کی طرف کو بھاگی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھاگ گیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ اتنا کمینہ تھا، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور جب وہ بھاگا نا تو اس کا ایک فون ہمارے گھر میں رہ گیا تھا، موبائل۔ یس سر۔ اچھا۔ اس کی شاید بیڈ پہ تھا یا شاید سے آگے، مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا۔ وہ ٹھیک۔ فون فرحان کو ملا تھا، وہ مجھے بھی نہیں ملا تھا۔ اور اس کے بعد نا جب ابو اوپر آئے تھے نا تو ویڈیو کال کے اوپر فرحان تھے، تو فرحان نے کہا کہ بابا اس کو نا نیچے لے جاؤ، پاپا آپ اس کو نیچے لے جاؤ۔ اور میری شوہر کو پتا لگ گیا کہ میری بیوی کے کمرے میں کوئی لڑکا موجود ہے، یس، اور اپنے ابو کو بولا کہ اب اس کو آپ اپنے ساتھ اپنے پورشن میں اس کو لے جاؤ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا نا کہ دوسرے پورشن میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سارے اپنے اپنے ہوتے ہیں پورشن میں۔ انہوں نے کہا کہ پاپا آپ نے اس کو نیچے لے جاؤ، تو آپ نے اس کو واش روم نہیں جانے دینا، میں ابھی آ جاؤں۔ واش روم کیوں نہیں جانتا کہ وہ آپ سے آگے پوچھ سکے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں پر بھی نہیں جانے دینا، اس کو اپنے نیچے بٹھا لو، اس کو واش روم بھی نہیں جانے دینا۔ فرحان نے اتنا اسٹرکٹلی اپنے بابا سے بات کی اس ٹائم۔ تو میرے سسر مجھے چھپ کر کے نیچے لے گئے، اور نیچے جا کے انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ انہوں نے جب مجھے بٹھا دیا تو اتنی 10 منٹس بعد ہی 10 to 12 منٹس بعد ہی فرحان آ گئے، اور فرحان نے آ کے ہم سے کافی شارٹلی بات کی۔ فرحان نے میری جھولی میں قرآن مجید رکھا، وضو کروایا، قرآن مجید رکھا، اس کا پہلا رکوع پڑھوایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھ رکھو، مانو میرے پاپا پاگل نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے پر ایسے جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، وہ میرا باپ ہے، میری بچی اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور یہ فون مجھے ٹیرس سے ملا ہے، ٹیرس سے ملا ہے، اور اس فون کے اندر ایک میسج ہے کہ ایک چیز میں نے دیکھ لی ہے، مجھے ہر چیز پتہ چل گئی ہے، لیکن میں تمہارے منہ سے اس ٹائم سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا، میں خود کو کچھ کر لوں گا، مجھے ساری کلیئرلی بات بتاؤ، یہ بات کلیئرلی پورا ماجرا ہے کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے فرحان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جو بھی تھا A to Z۔ اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ لڑکی جن پر یہ الزام ہے کہ مبینہ طور پر ان کی ایک ڈلیوری بوائے سے دوستی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس ڈلیوری بوائے کو یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ آپ کا نام؟ آمنہ۔ کب سے جانتی تھیں آپ اس ڈلیوری بوائے لڑکے کو؟ میری اس کی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی نا، اس کی فرسٹ ٹائم ہوئی تھی اس کی ڈیتھ سے 2 ہفتے پہلے۔ یہ میرے گھر آیا تھا اس ٹائم، اس نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کا پارسل ہے میم، کائنڈلی نیچے آ کے ریسیو کر لیں۔ جب میں نے وہ دروازہ کھولا تھا تو اس ٹائم یہ انٹر ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بلیڈ تھا۔ نہیں، یہ پہلی دفعہ جب آپ سے اس کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو فون پہ سے رابطہ کیا آپ سے خود ہی؟ پہلے تو فون پہ اس نے 5 to 4 month کافی پریشان کیا تھا، اور میں نے اس بات کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے 2 دفعہ اس طریقے سے کیا تھا کہ آپ میری سم چینج کرا دے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے سالوں سے ہمارے پاس یہی سم ہے تو تمہیں کیا اس سے ضرورت پڑ گئی کہ تم سم چینج کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسی سم کو رکھو اپنے پاس ہی۔ فون کرتا تھا تو کیا کہتا تھا تب جب؟ سر وہ جب کالز آتی تھی نا ان نون نمبر سے، کالز آتی تھی یا میسج آتے تھے یا یہ گندے گروپ سے مجھے جب ایڈ کرتا تھا تو میں اس کو ایگزٹ کر دیتی تھی یا بلاک کر دیتی تھی۔ جو میں نے اس کو فرسٹ رسپانس دیا تھا نا، وہ میں نے اس کو رسپانس ویڈیو کال کے اوپر دیا تھا۔ اور جو پہلے آپ کو کالز کرنے سے پہلے کہیں پرسن دینے گھر نہیں آیا یہ اس سے پہلے کبھی؟
नंबर आपका सर उसने मैं कहाँ से इसको लिया? नहीं जानती, नंबर उसने यहाँ से लिया ना कि वो पार्सल देने घर आता था, मुझे भी और मेरी सारी फैमिली वालों को भी। मेरी जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह से। जॉइंट फैमिली? यस सर। कौन कौन होता है आपके घर में? सर मेरे घर में माशाल्लाह मेरे देवर होते हैं, देवरानी होती है, और मैं थी और मेरे ससुर थे और बच्चे होते हैं और मेरे सब लोग हस्बैंड होते होते हैं। हैं। हाँ आप जी। आप एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग पोर्शन है? हमारे पोर्शन अलग अलग है, घर एक है लेकिन हमारे पोर्शन अलग अलग शादी है। को कितना अर्सा हो गया आपको? शादी को माशाल्लाह से 9 साल होने वाले हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बेटे बेटियां? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां और 1 बेटा है। 2.5 साल की बेटी, 3.5 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी है। अच्छा, अब बकौल आपकी कि ये आपको 4-5 महीने से तंग कर रहा है? यस सर, मुझे 4-5 महीने से ना ऐसे मैसेजेस आए थे, मैसेजेस कॉल्स 4-5 वगैरह। महीने में आपने अपने शोहर को क्यों नहीं बताया? सर मैंने अपने शोर से ना 2 दफा इस्लाम में बात करने की कोशिश की कि मुझे ना सिम चेंज करनी है, तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप सिम चेंज करनी है, आपने आपके पास ये सिम है, आप इसी सिम को यूज करो। तो मैं अपने हस्बैंड से बात डिस्कस नहीं कर पाई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, तो मैंने इसको इस बात को बहुत इजी लिया और मैं उसको ब्लॉक करती थी, उसको साइड पर देती थी। मैंने इसको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ना कभी फोन के ऊपर, ना कभी ना कॉल्स वगैरह या मैसेजेस के ऊपर। अच्छा, तो उसके बाद फिर फर्दर आपकी एक तस्वीर है, उसके साथ Yes, बड़े sir. हंस के आप बात कर रही हैं और वीडियो कॉल कर रही एक हैं। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। तो अब लोगों का ये पूछना है यस सर। कि क्या कोई लड़की जिसको अगर कोई बंदा तंग कर रहा हो 4-5 महीने से, तो वो उस लड़के से इस तरह हंस के बात क्यों करेंगी? ये लोग पूछ रहे हैं। हाँ लोग पूछ रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ सर। मैं इसको नहीं जानती थी कि ये वही नंबर है जो मुझे 5 to 15 नंबर से काफी परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। ये मैं नहीं जानती थी कि ये वही है। मैं मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी और मम्मा ने मुझे ऐसे कहा कि किसका फोन आ रहा है, कितना फोन आना पे है। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा और मैं ऐसे हो गई कि हाय मम्मा पूछ रही किसका फोन आ रहा है, और एक अननोन नंबर से बार बार मुझे कॉल आई थी। तो मेरे जहन में उस टाइम ये आया कि मैं इसको फोन करके ना इसको मना करती हूँ कि ना इस ना कॉल करे, ना परेशान करे। मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उसकी वीडियो कॉल डायरेक्टली आ रही थी व्हाट्सएप के पर, एक नंबर था उससे आ रही थी। मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव की तो मैंने इसको कहा, तो ना मैंने इसको कुछ नहीं कहा। उसने मुझे डायरेक्टली एक बात की कि इश्क हो गया आपके साथ, शादी कराना चाहता हूँ आपके साथ। जब उसने ये बात की ना तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर कि इसमें एक में देखिए, एक तो देखें एक नॉर्मल सी बात Yes, है sir. कि एक नाम महरम एक अननोन कॉल आती है। तो सर इस बात मेरी बात सुनिए ना, हाँ मेरी बात सुनिए। तो एक लड़का अगर सामने मौजूद है तो आप बिल्कुल दुपट्टा भी नहीं आपका। सर आपका मुझे कोई- नहीं पता था किसकी कॉल और है, दूसरी जो इस- मुझे अगर कोई- बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरी बात सुन लें, दूसरा लड़का जो ये बात कर रहा है तो उसको शटअप कॉल देनी चाहिए थी। आप हंस रही? सर तो मुझे हंसी आ गई कि, और उसके बाद मैंने उसको कहा कि 3 बच्चे हैं, तो उसने आगे से कहा कि मैडम जी क्या आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद फिर फर्दर उसके बाद 2 क्या दफा हुआ? उसकी वीडियो कॉल आई, मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तब तक उसके बाद मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता रहा? सर फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता रहा। ऐसे मुझे नंबर्स पे कॉल्स आती रही, मैसेजेस आते रहे, उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देती रही। जब मुझे ना फोन पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर फोन वो चलता था। घर इससे पहले आ चुका था आपके एक बार जब भागा था? हाँ जी। नहीं अच्छा। एक ही दफा आया था, सिर्फ एक ही दफा ही आया था वो मेरे कब आया था? घर, जिसका मेरा आमना सामना हुआ था। इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। वो पहली दफा आया था? यस सर, वो पहली दफा आया था, यानी जो उसका मेरा लाइव आमना सामना हुआ था ना, वो तब हुआ था। उससे पहले वीडियो कॉल्स पे बात नहीं होती थी? नहीं सर, कोई बात ये नहीं एक जो बात होती हुई थी। है यस सर। ये पहले हुई या बाद में हुई? सर ये पहले हुई थी। पहले हुई। हाँ उसके बाद जब वो घर आया, जब आप कह रही एक दफा घर आया और जबरदस्ती आपको उसने डराया भी, धमकाया भी और हाथ भी लगाया आपको, तो वो कब आया और क्या क्या कह के आया कि मैं आपको पता था ये वही लड़का आ रहा है डिलीवरी बॉय? नहीं सर, मुझे नहीं पता था ये वो आ रहा है। उसने कहा कि मैम आपका पार्सल है, आप नीचे प्लीज काइंडली आके रिसीव कर लें। ठीक और है। सर मैं नीचे गई और मैंने खुद दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में एक ब्लेड था। वो पहले इसने मेरी कमर के ऊपर रखा, फिर उसने अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे। Yes, sir. आप खुद बता रही हैं आप ज्वाइंट फैमिली से हैं, यस सर। तो आपकी मेन एंट्रेंस तो रहता ही होगी ना? सबकी नहीं, एक ही है, सबकी एक ही ना? entrance है। आप उसी एंट्रेंस पे गई थी? यस सर। तो पहली एंट्रेंस पे गई तो नीचे तो आपके जो देवर हैं आपने बताया ससुर नीचे हैं, नहीं, घर वाले। ऊपर ही हमारे साथ ही रहते हैं। उनका भी अलग पोर्शन है, रहते वो ऊपर ही है जो मेरे मेन देवर। एंट्रेंस पे जब उसने आप पे बकोल आपके एक ब्लेड रखा तो उस वक्त क्यों नहीं पता चला किसी को, या आपने उस वक्त उसको क्यों नहीं, आप डरी क्यों नहीं, आपने उसको
चीखें क्यों नहीं मारी हैं? आपको किसी को शोर करके बुलाया क्यों? सर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? कहता मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और जिसको तुम भाव नहीं देते। इश्क हो गया तुम्हारे साथ लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम उस तरह नहीं ना मानती, आज दिखना मैं तुम्हें कैसे मनवाता तो हूँ। वो वहां से फिर आपको आपके ऊपर रूम तक ले गया? नहीं सर, उस टाइम ब्लेड मेरी होंठों पे रखा, उसने कहा जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई तो बाहर 2 लड़के खड़े हुए हैं, यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो तुझे पकड़ लेंगे। मैं तो तुझे नहीं, आपका अपना पोर्शन तो डिफरेंट है ना? Yes, आप sir. मेन एंट्रेंस पे थी, यस सर, तो मेन एंट्रेंस पे वो धमका रहा है आपको। यस सर, वो मेन एंट्रेंस पे धमका उसके रहा है। बाद फिर सर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे यहाँ पे लेके जाओ वरना मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेड फेंक दूंगा। उसने मुझे इस तरह से कहा और फिर मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई जो मेरा पोर्शन था, मैं उसको वहां पे लेके गई। ये थोड़ी सी ना लोगों का ये कहना है, जो आवाम की जो सोच है, ये बात है कि अगर दादा वो अजय ससुर आपके देवर देरवानियाँ जिठानियाँ सब घर में थे तो फिर वो ब्लेड भी लेके आया, घर में किसी को पता नहीं चला, उसने मेन एंट्रेंस पे आपको डराया धमकाया, आपने शोर नहीं किया। क्योंकि एकदम अगर कोई ऐसे हाथ में कोई चीज गन या कोई सब रखेगा तो वो ब्लेड रखेगा तो ऑटोमेटिकली औरत चीख पड़ती है, लोग या कोई मर्द भी हो वो भी डर जाता है। आप ना डरी, आपने आपने शोर सर, किया, उस फिर टाइम आप उसको सेफ कमरे में भी ले गए। नहीं सर, मैं उस टाइम डरी थी। क्यों नहीं डरी थी? मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा ये जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई ना तो मैं ब्लेड तुम्हें फेंक दूंगा। टाइम क्या था? वो सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था? दोपहर का टाइम था। दोपहर का टाइम। उस टाइम घर पे कौन कौन था आपके? उस टाइम सिर्फ मेरे ससुर थे घर पे। ससुर थे? जी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपके कहाँ पे थे? ट्यूशन। ट्यूशन। बेटी आपकी कहाँ पे थी? ट्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? वो आपको जबरदस्ती बगौर आपकी सेफ रूम में ले गया, आपके पोर्शन में ले गया? यस सर। फिर सर उसके बाद उसने वो मुझे घसीटता गया साथ शोल्डर पकड़ के, उसके हाथ में ब्लेड था, वो मुझे साथ साथ अपने घसीटता गया। उसने प्रॉपरली पहले पूरा घर चेक किया, उसने परफ्यूम्स पाउडर्स वहाँ पे पहले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था वो उसने सारा देखा। उसके बाद ऐसे LCD के पास हमारा सामान पड़ा हुआ था जो मेरे शोहर मुझे मानती तोड़ के ऊपर दे के गए थे, उसने वो चीज देखी। शोहर आपके कहाँ पे थे? मेरे शोहर उसी टाइम ही काम पे गए थे। ठीक है, शोहर भी घर पे नहीं थे, कोई और भी घर पे नहीं था, ससुर घर पे थे? हाँ जी, उसमें फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया। ये 10 to 15 मिनट्स वो रहा है ऊपर मेरे साथ, उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपरली हाथ लगाया, उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद जब मैं चीखती थी या मैं रोती थी तो जोर जोर की तशद्दुद करता था। फिर पता कैसे चला वो कर रही है आपके? तो उसके बाद मेरी बेटी कब ट्यूशन से आई हमें बिल्कुल पता नहीं चला। मेरी बेटी आई ट्यूशन से, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरी बेटी जब ऊपर आई ना तो उसने मुझे इसके साथ देखा और मैं बहुत खौफजदा थी कि ये मेरे साथ साथ मेरी बेटी को न पकड़े। और वो गालियां भी दे रहा था उस टाइम मुझे, और उसका ये कहना था कि तुम ऐसे नहीं मानती तो ऐसे मानोगी, तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानती तुम ऐसे मानोगी। नहीं तो अभी चले, मतलब आप जो बात कह रही हैं मान लेते हैं, अगर आप सच कह रही हैं तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। 10-15 मिनट तक मिनट तक वो वहाँ पर रहा, फिर आपकी बेटी उसने जाके फिर आपके ससुर को बताया? अबू को बताया। क्या बताया? अबू को बताया कि वो मम्मा के साथ कोई ऊपर बैठा हुआ है, तो अबू आए। बैठा हुआ था मतलब कि आप उस 15 मिनट में भी आपने रेजिस्ट नहीं किया ना? एक जनरल एक आम बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि एक बंदा मेन गेट से ऊपर आता है, ऊपर आके ऊपर 15 मिनट आपके रूम में बैठा हुआ है, तब भी नहीं आप 15 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट का ही चले 10 था। मिनट 5 मिनट कर लें, 10 आप शोर नहीं मचाती हैं, आपकी बेटी देखती है सर, उसके बाद जो आगे बताती है तो फिर वो भाग जाता है। नहीं सर, अच्छा, जब क्या वो हुआ? मेरी बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। उसके बाद नीचे से अबू आए, अबू आके ऊपर आए ना, दरवाजा जोर जोर की जब खड़काया ना तो ये बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे। उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली। ये सीन मैंने नहीं देखा, इस ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी है, क्योंकि ये जैसे किचन की तरफ को भागा ना तो मैं दरवाजा खोलने की तरफ को भागी हूँ। ठीक है। तो वो भाग गया, वो वहां से भाग गया, वो इतना कमीना था, वो वहां से भाग गया। और जब वो भागा ना तो उसका एक फोन हमारे घर में रह गया था, मोबाइल। यस सर। अच्छा। उसकी शायद बैग पे था या शायद से आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो ठीक। फोन फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अबू ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, तो फरहान ने कहा कि बाबा इसको ना नीचे ले जाओ, पापा आप इसको नीचे ले जाओ। और ना शोर पता लग गया कि मेरी बीवी के कमरे में वो लड़का मौजूद है। यस। और अपने अबू को बोला कि अब इसको आप अपना अपने साथ अपने पोर्शन में इसको ले जाओ, क्योंकि ना हमें नहीं पता चलता ना कि दूसरे पोर्शन में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे तो अपने अपने होते हैं पोर्शन में। तो कहा कि पापा आपने इसको नीचे ले जाओ, तो आपने इसको वॉशरूम नहीं जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ।
वॉशरूम क्यों नहीं जाने, ताकि वो आपसे आके पूछ सके? उन्होंने कहा कि इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। उन्होंने फरहान ने ना स्ट्रिक्टली अपने बाबा से बात की उस टाइम। तो मेरे ससुर मुझे छुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो इसलिए 10 मिनट्स बाद ही 10 to 12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गए और फरहान ने आके मुझसे काफी शॉर्टली बात की। सारे घर में जितने थे ना, मतलब जितने भी लोग थे वो सारे जमा हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज्वाइंट फैमिली है, किसी की इतनी जरूरत भी नहीं कि किसी ने मुझे घूर के भी देखा हो। लेकिन फरहान काफी गुस्से में थे, उन्होंने काफी मुझसे शॉर्टली बात की। उन्होंने फिर मम्मा को फोन किया, उन्होंने कहा कि आंटी इसको ना आके आप ले जाए। भाई लड़का तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, इसी बात को बहुत गुस्से में थे, यही बात थी। और मम्मा आई और मम्मा मुझे चुप करके अपने साथ ले गई। नेक्स्ट डे ये हुआ कि इनकी पूरी फैमिली आई, फरहान की पूरी फैमिली आई, जितने भी लोग थे। उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी आपस में अलहदा बैठ के बात कर लें। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैं फरहान के साथ कमरे में चली गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैं फरहान के साथ अलहदा कमरे में थी। फरहान ने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा, वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहला रुकू पढ़वाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इस तरह झूठ नहीं बोल सकती है। और ये फोन मुझे टेरेस से मिला है, टेरेस से मिला है। और इस फोन के अंदर एक मैसेज है कि एक चीज मैंने देख लिया, तुम उसके तल्ले कर रही हो, तुम उसके मिन्नतें कर रही हो, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज उसके पास है कि तुम उसको ऐसे कह रही हो। वो तुम्हें कह रहा है कि मुझे तुमसे इश्क हो गया, ब्याह कराना तेरे साथ, फरहान को छोड़े हम मेरे पास आए, या आपके काबिल नहीं है, आप किस चक्कर में पड़ी हुई हैं, इस तरह से कर रहा है। और वो तुम्हें तुम्हारी बेटियों से धमका रहा है, तुम्हारे बच्चों से धमका रहा है, तुम क्यों इस तरह कर रही हो। कहते मुझे हर चीज पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या। फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी था A to Z। मैंने इस तरह बताया कि इसला ना काफी मुझे परेशान कर रहा था। और उसके बाद इस तरह मुझे एक वीडियो कॉल आई और मैंने उसकी वीडियो को रिसीव की और उसके बाद उसने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने साथ इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारा खावा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपको इश्क हो गया, उन्होंने मुझे अकेले में कहा कि अगर आपको किसी से भी इश्क है आप मुझे बता दो, मैं बरादरी को यही कहूंगा कि मैंने आपको छोड़ा है। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। इसमें एक चीज आपने जो सारी बात बता दी, अब वो लड़का तो उस दुनिया में नहीं है। यस, तो उसको तो आपके हस्बैंड ने, या हो सकता है आप ही साहब मौजूद हो, बीच में आप इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन उसको खत्म करके चला दिया, खत्म कर दिया उसने। लेकिन आपको नहीं लगता कि 3-4 महीने तक ये चीजें जो अब बाद में जब आपके कुरान रखा गया तो आपने बताया, वो आप पहले बताती, पहले शर्ट कॉल देती, ना आपके घर आता, ना ये मामला। सर मैंने उसे कहा था कि वो मेरे घर है। आप मुझे ये बताएं, मैंने उसे कहा था एक चोर डाकू आपके घर आ जाता है, आप उसे दावत देते कि आ जाओ हमारे घर आ जाओ। नहीं, चोर डाकू ऐसे तो नहीं आते, तो वो प्लानिंग करके आते हैं ना, इसने भी प्लानिंग की हुई थी। जब आते हैं तो डेफिनेटली फिर वो जब घर आया, अगेन वही बात आ जाती है ना कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। सर उसने सबकी टाइमिंग नोट की हुई थी, हर चीज A to Z उसने नोट किया हुआ था मेरी बच्ची के पीछे। उसको मेरी बच्ची के पीछे तक का पता था। उनके पास है सर, वो मेरे हस्बैंड को पता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फोन तो मेरे पास है ही नहीं ना। नहीं, फोन आपके पास नहीं है। हाँ जी, लेकिन मैसेजेस जो आपको आते सर ना मुझे क्या पता कि मेरे पास है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को पता है रहा। मेरी रिक्वेस्ट आप ही सुन। सर माँ मुझे नहीं पता। 4 महीने से तो आपको तंग कर रहा था। यस सर। 4 महीने से मैसेजेस कर रहा था। यस सर। तो वो आपने मैसेजेस पढ़े थे? यस सर। तो फिर वो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आपको वो मैसेजेस जो थे नहीं वो वाले नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो आते रहे ना मैसेजेस, उसके बाद जो आते रहे वो फरहान के पास शायद हो। इस बात में मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। आपके हस्बैंड को सारी बात का तो मोबाइल से पता लगा ना? हाँ जी, उसको कि फोन से आपके मैसेजेस और उसके मैसेजेस हो रहे थे, जो भी मामला थे। जी सर। ऐसे ही है ना? जी सर। तो फिर आप उसी वक्त बताती, आप उसको रिप्लाई ना करती उस बंदे को। सर जो आपकी बेटी के पीछे जाए इस तरह, आपके पीछे इस तरह जो है। किसी की बेटी के पीछे जाए उसको उसी वक्त उठा के पुलिस में दो, नहीं होता उसके बाद उसकी कानूनी कार्रवाई होनी सर, बस चाहिए। मुझे 4 इसी महीने बात तक इस का- बात को आपको चाहिए नहीं था लड़का। इस बात का आप मुझे यही देखिएगा, डर था। आप जो शख्स आपकी बेटी या बच्चों को कहाँ का और कहाँ का आपको कॉल आपकी वो तंग करता रहा, आपको आप कह रही गली में भी तंग करता था? यस सर, उसने गली में 2 दफा मुझे हाथ भी लगाया था। फिर आप कह रहे गली में आगे शोर भी करता था? यस सर, ऊंची ऊंची आवाजें लगाता था, अजी सुनती हो, अगर तुम मैसेज का या फोन का रिप्लाई नहीं दे रही तो मैं फिर अब बच्चों को लेने जाऊं, वो मुझे ये कहता था। अभी सोचने वाली बात है, आप खुद बता रही हैं गली में आगे वो शोर करता था। यस सर। ज्वाइंट फैमिली में आप रहती हैं, आपकी तेवर देवरानियां ससुर किसी को आवाज नहीं जाती, सिर्फ आपको आवाज जाती थी? सर क्योंकि मेरे टेरेस वाला पोर्शन था ना। नहीं, सोचने पर नीचे देखें, नीचे या ऊपर जो भी है किसी को आवाज नहीं दी। अब मैं सर, यहाँ पे चीखूंगा ना
تو یہاں پر اگر یہ آپ کے لیڈی اس کانسٹیبل بات کا مجھے نہیں پتا، لیکن اس طرح کرتا تھا اور نیچے آ کے بار بار بیلے دی جاتا تھا، آپ کا پارسل آپ پلیز کائنڈلی نیچے آ کے ریسیو کریں، آپ کا پارسل آپ پلیز کائنڈلی نیچے آ کے ریسیو کریں. میں اس کا پارسل بھی ریسیو نہیں کرنے جاتی تھی، اتنا پریشان کرتا تھا، اتنا تنگ کرتا تھا. میں اس کو ہر جگہ سے مجھے یہ تھا کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی، میں بدنام نہ ہو جاؤں، کوئی مجھے اس کے ساتھ اٹیچ نہ کر دے. مجھے جس بات کا ڈر تھا میں اس بات کے ڈر سے اس کو چھپاتی ایک رہی. گزارش سنیں، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دفعہ آیا تھا گھر، Yes, اسی sir. دن بھاگ گیا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پہلے بھی جاتا تھا، پارسل لے لو پارسل لے لو، ایک بات ہے نا؟ یس سر. تو میں نے وہ کبھی کھولا ہی نہیں، وہ دروازہ میں نے کبھی کھولا ہی نہیں. جب یہ مجھے پریشان کرتا تھا، ہمارے گھر کے باہر آ کے پریشان کرتا تھا، تب میں اس کو رسپانس ہی نہیں دیتی تھی. تب مجھے آپ یہی کو تھا، کیسے پتا تھا کہ تب وہی آپ مجھے کو تنگ یہی کر تھا رہا ہے؟ کہ یہ چھپ جائے. یہ اس بات سر مجھے تھا کہ مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے، لیکن میں اس کی شکل نہیں پہچانتی تھی ٹھیک سے، میں اس کی شکل نہیں جانتی تھی. لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے، مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے، مجھے کوئی ٹریپ کر رہا ہے. پھر آپ نے دروازہ آپ کے لیے نہیں کھولا تو اس دن پھر آپ نے کیوں کھول دیا اس کے بعد؟ سر کیونکہ اس دن فون آیا تھا مجھے. فون تو وہ پہلے بھی کرتا تھا. سر وہ اس دن میرا واقعی میں پارسل آنے والا تھا. جی اس دن میرا واقعی میں پارسل آنے والا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے بھی یہ بتایا کہ وہ ایک ہی ڈیلیوری بوائے ہے، پورے ایریا کو کور کرتا ہے، ایسے ہی وہ ایک ہی ہے نا؟ اس بات کا مجھے نہیں پتا. جی اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ ایک ہی ہے یا وہ پورے. اس ابھی آپ بات بتا کا رہی تھی کہ آپ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے بچوں کی ٹیچرز کیا منگواتی ہیں. یس سر. یس سر. کہا تھا نا؟ یس سر. یہاں پہ بھی اس نے مجھے دھمکیاں لگائی تھی، اور یہ محلے میں کھڑے ہو کے اس نے مجھے دھمکیاں لگائی دیکھیں تھی. اتنا وہ برا تھا تو اس کو پکڑواتی ہیں. اس کو سر میں جب پکڑواتی تو آپ نے تب بتایا جب آپ کی سسر نے آپ کے کمرے میں اس کو دیکھ لیا. سر انہوں نے میرے کمرے میں اس کو نہیں دیکھا. آپ کی بیٹی نے تو دیکھا نا؟ ہاں جی میری بیٹی نے وہی تو کہہ دیکھا. رہا ہوں، آپ نے تب ساری باتیں شوہر کو بتائیں جب آپ کی بیٹی نے اس کو آپ کے ساتھ دیکھا، پھر وہ وہاں سے بھاگا، پھر آپ کے شوہر نے کہا اس کو پاپا ہلنے نہ دینا، اس کو نیچے لے کے جائیں میں پوچھ لیتا ہوں. قرآن پاک لا کے اس نے آپ کی گود میں رکھا، اس نے آپ پہ غصہ بھی کیا، تب آپ نے یہ ساری کہانی بتائی تھی کہ یہ معاملات ہے. تو یہ پہلے بتاتی ہیں آپ شوہروں سے، تو یہ بات چھپانے والی ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی اتنا تنگ کرتا ہے تو اس کو فوراً بتائیں. اس کی والدہ جو بچہ جو دنیا میں رہا ہے، اس کے گھر والے ہیں، جو لوگ ہیں جو آپ کے دوسرے انٹرویوز دیکھ کے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ 4 مہینے تک چپ رہی، آپ نے انتظار کیا پکڑے جانے کا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب عوام کو آپ دے سکتی ہیں. مجھ سے اس بات کی غلطی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے جو میرا گھر ڈلے ڈوبی ہے. اگر میں ہمت کرتی کتنی بدنامی ہونی تھی، کس نے کیا بات کر دینی تھی. اگر میں اس ٹائم ہمت کرتی، اس ٹائم کسی کو بتا دیتی، اپنی ساس کو بتا دیتی، نہ شوہر کو بتاتی، اپنی ساس سے بات ڈسکس کر لیتی، تو شاید یہ نوبت آج نہ